آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 17ویں آیت۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے جو آج روح القدس کے وسیلہ سے ملا، وہ یہ ہے کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں، یعنی کام کرنے پر آج روح القدس نے ہمیں کلام بخشا ہے تاکہ ہم سیکھیں۔ خدا باپ بھی کام کرتے ہیں اور لکھا ہوا ہے اب تک کام کرتا ہے، یعنی مسلسل لگاتار خدا باپ کام کرتے رہتے ہیں۔ دوسری بات، میں بھی کام کرتا ہوں، یسوع بھی کام کرتے ہیں، کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو لفظ جو ملا ہے وہ ہے کام کرنا۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سب سے پہلے تو میں یہ روح القدس کے وسیلہ سے بتانا چاہوں گی کہ کام کرنا جو ہے وہ روح کا پھل ہے، وہ ہماری روح میں وہ پھل ہونا چاہیے۔ کیا ہماری روح میں یہ پھل ہے کام کرنا؟ یہ ہم نے اس کلام کے بعد اپنے اندر جج کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ پھل ہے کام کرنے کا، اور اگر نہیں ہے تو ہم نے بھی کام کرنے کے پھل کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس کے لیے دعا کرنی ہے اور محنت کرنی ہے تاکہ ہمارے اندر کام کرنے کا پھل پیدا ہو، کیونکہ ہمارا باپ بھی ہر وقت کام کرتا ہے، آسمانی باپ، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح بھی ہر وقت کام کرتے ہیں اور کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کام کو ہم پہلے روح القدس کے وسیلہ سے دیکھیں گے کہ کام کیا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی سے، جیسا کہ روح القدس ہمیشہ روزمرہ کی زندگی سے ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ کلام سکھاتا ہے۔ اب ہم کام کو دیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں پہلی بات ہے کتنا کام کرتے ہیں۔ کیا ہم دل سے کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم شوق سے کام کرتے ہیں؟ کیا ہمیں کام کرنا پسند ہے؟ یہ سوال بھی ہے اور یہ تعلیم بھی ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کام کریں؟ کیا ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی ہمیں کام کے لیے آواز دیتا ہے، یا ہم خود سے ہی اپنے سارے کام نپیٹ لیتے ہیں کہ ہم یہ سارے کام پورے کر دیں؟ جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہم کام کرنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ہم آرام کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں کام نہ کرنا پڑے، ہمیں اٹھنا نہ پڑے، ہمیں ہلنا نہ پڑے۔ ہم بس اگر لیٹے ہیں تو ہم لیٹے رہیں، اگر ہم بیٹھے ہیں تو ہم بیٹھے رہیں۔ ہمیں کام کرنا اچھا نہیں لگتا، ہمیں آرام کرنا پسند ہے، ہمیں سستی کاہلی میں رہنا پسند ہے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ہمیں کام کے لیے کہتا ہے کہ یہ کام کر دو، اور زیادہ تر ہمارے بڑے بزرگ، سب سے پہلے ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کام کے لیے آواز دیتے ہیں کہ فلاں کام کر دو، فلاں چیز لے آؤ، تو بچے کیا کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بھی استاد جو ہے وہ اسکول میں یا کالج میں جب وہ کام دیتا ہے تو وہ کام کیا پسند کرتے ہیں؟ کیا ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے ہم کام کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اسی طرح جب ہمارے گھر میں کوئی بڑا بزرگ کوئی آ جاتا ہے اور وہ ہم سے کوئی بات کہتا ہے کہ میرے لیے یہ کر دو، تو ہم وہ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ جب باتیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے غصہ آتا ہے، کیونکہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہمیں غصہ آتا ہے۔ پھر ہم چڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سب برے پھل کام نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اندر کام کرنے کا دل، پھل، خوشی، شوق نہیں ہے آسمانی باپ کی طرح اور یسوع مسیح کی طرح۔ اور پھر ہم چڑنے کے بعد بولنا،
बदतमीजी करना, आर्ग्यू करना, बहस करना, शिकायत करना शुरू कर देते हैं। ये सारे फल, बुरे फल हम लोग हमारे अंदर से इसलिए निकल रहे होते हैं क्योंकि हम काम करना पसंद नहीं करते, हमारी रूह के अंदर काम करने का फल नहीं है, हमें काम करना अच्छा नहीं लगता। अगर हम अपने बाप को, आसमानी बाप को देखते तो वो तो काम करते चले जा रहे हैं, अब तक काम कर रहे हैं। ये यीशु मसीह की गवाही है कि मेरा बाप अब तक काम करता चला जा रहा है और मैं भी काम करता हूं। तो दोनों, बाप और बेटा, दोनों काम करना पसंद करते हैं, शौक से करते हैं, दिल से करते हैं, कोई उनको मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन उनके अंदर ये फल है कि वो मेहनती हैं, वो काम करते हैं। अब हमारी रूह जो है वो खुदा बाप से और यीशु मसीह से मेल नहीं खाती, मैच नहीं होती। वो काम करना पसंद करते हैं और हम काम करना पसंद नहीं करते। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हम अपने आप को देखें कि हमें काम करना अच्छा नहीं लगता, और काम ना करने की वजह से हम अब बहुत से गुनाह करते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि काम ना करना, पहली बात है काम हमने सीख लिया। अब ये है कि काम ना करके हम अपने ऊपर मुसीबत और तंगी लेके आते हैं। दो नुक्ते सीखेंगे, काम ना करने की वजह से मुसीबत और तंगी लेके आते हैं। दूसरा नुक्ता, काम करने से आराम और खुशी मिलती है। ठीक है, अब जो काम है हम नहीं करते, हम पहले उसको सीखेंगे। हम किस तरह से काम ना करें तो हमें तंगी और मुसीबत, दुख, परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो हम पहले देखते हैं। पहली बात है, जब आपको प्यास लगती है और आप किसी पानी की प्यास लगती है, आपको बहुत प्यास लगती है, आप क्या करते हो? काम ना करने की वजह से, क्योंकि आपका दिल नहीं है कि आप उठ के अपने लिए पानी पी लो, आप दूसरे को आवाज देते हो, मेरे लिए पानी लेते आना। आप काम ना करने की वजह से उस प्यास में तड़पना पसंद करते हो, तड़पना चाहते हो। ये छोटी सी मिसाल मैंने दी है। ये पसंद करते हो कि हम तड़पते रहे प्यास में, लेकिन उठकर पानी नहीं पीते, यानी काम नहीं करते, क्योंकि काम में आपको अपना जिस्म हिलाना पड़ता है। काम करने के लिए आपको हिलना पड़ेगा, काम के लिए आपको अपना आराम जो है वो तोड़ना पड़ेगा। आपको बिस्तर से या सोफे से, चेयर से उठकर जाना पड़ेगा। इस छोटी सी मिसाल के बाद हम बड़ी मिसाल को देखकर सीखते हैं कि जो लोग मेहनत नहीं करते, नौकरी नहीं करते, काम नहीं करते, अपने लिए पैसा नहीं कमाते, वो किस तरह से तंगी और मुसीबत का सामना करते हैं कि वो फारिग रहना पसंद करते हैं। और फिर जब वो फारिग रहते हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं होते, इतने उनके पास पैसे नहीं होते कि वो अच्छी रोटी खा सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छे घर में रह सकें, अच्छी सहूलतों को ले सकें। तो वो सिर्फ और सिर्फ काम ना करने की वजह से ये मुसीबत और तंगी अपनी ज़िंदगी में उठाते रहते हैं। और ना सिर्फ कि वो एक वक्त उठाते हैं, बल्कि काम ना करने की वजह से उनको सारी उम्र, जब तक वो जीते हैं, ये तंगी और मुसीबत उनको उठानी पड़ती है, रोज़ाना उठानी पड़ती है, हर वक्त उठानी पड़ती है। जब आपको दिल करता है कुछ खाने को, जब आपके पास नहीं है उसको खरीदने के लिए पैसे, तो आप क्या करोगे? वो लज्जत पाने के लिए आप अंदर कुटते, तड़पते और दूसरों को सिर्फ देख सकते हो कि वो अच्छा रह रहे हैं, और आप सिर्फ इसकी तकलीफ उठाते हो। अगर आपका कुछ ऐसे भी हालात आ जाते हैं कि जब आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो आप भूख को बर्दाश्त कर रहे होते हो और भूख में तड़प रहे होते हो, तब भी मेहनत करना, काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन तड़पना, मुसीबत उठाना, दुख उठाना वो आप पसंद करते हो। तीसरी बात, जब काम नहीं करते
तो जब आप अच्छा नहीं पहनते, अच्छा खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अच्छा नहीं पहनोगे, आप पुराने कपड़े पहनोगे, फटे हुए कपड़े पहनोगे, टूटी जूती पहनोगे, तो क्या काम ना करने की वजह से आपकी ज़िंदगी में शर्मिंदगी ना आएगी? हम काम ना करने की वजह से शर्मिंदगी सारी उम्र उठा लेते हैं, और ये कोई एक वक्त की शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि सारी उम्र के साथ साथ रोजाना और हर पल की शर्मिंदगी है। ये हम ना काम करने की वजह से उठा लेते हैं। बहुत आसानी से और फारिग बैठना हमें बहुत पसंद है, क्योंकि हम काम करना, हिलना जुलना, पाँव को उठाना, टांगों को हिलाना, हाथों को हिलाना हम पसंद नहीं करते। इसके बरक्स हमें आराम से बैठना पसंद है। अब हम देखते हैं कि काम करने की वजह से हम आराम और खुशी पा लेते हैं। अब आराम और खुशी हम कैसे पाते हैं? जब आपको प्यास लगी है, उसी नुक्ते से शुरू करूंगी कि जब आपको प्यास लगी है, कि तो जो इंसान अपना काम करना पसंद करता है या काम करना उसको बुरा नहीं लगता, उसके अंदर ये खूबसूरत फल है कि वो काम करना उसको बोझ नहीं लगता, उसको काम करना बुरा नहीं लगता। वो क्या करेगा? वो अपनी प्यास जल्द और उसी वक्त बुझा लेगा, और उसको इस तरह से काम करने की वजह से तड़पना और प्यास बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह जो मेहनत करता है और उसके पास ज्यादा इनकम होती है, तो वो अपना पेट भरने के साथ साथ उसको एक तो भूख बर्दाश्त नहीं करने पड़ेगी, और दूसरों को देख देख के वो जो कुड़ना होता है कि मेरे पास नहीं है, वो मैं लज्जत की चीज नहीं खा सकता, तो वो अपनी काम करने की वजह से लज्जत और खुशी भी हासिल फौरन उसी वक्त कर लेता है, क्योंकि उसने काम किया होता है। तीसरी बात, जब काम किया जाता है तो हमें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। तो जब हम अपने लिए अच्छा पहनते हैं, हम मेहनत करते हैं, हमारे पास इतने वसाइल हैं और हर चीज़, दुनिया की हर सहूलत हमने मेहनत करके, काम करके हासिल की है, तो हमें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो सब कुछ हमारे पास है। और जब लोगों के सामने हम जाते हैं तो हमें शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। ये सब कुछ है काम के पीछे हमारी जिंदगी। अब ये हमने सिर्फ अभी काम को सीखा कि काम क्या है, और दूसरी बात मैं एक और नुक्ता बयान करना चाहूंगी कि काम जो है, जो आपका काम है, कि आपने अपनी जात के लिए करना है। आप चाहते हो कि तू कर दे, आप कर दो। आप अपने आप के लिए भी काम करना पसंद नहीं करते, अपनी जात के लिए भी काम करना पसंद नहीं करते। इतना ज्यादा इस फल की हमारी जिंदगी में, हमारी रूह में कमी है कि हम अपनी जात के लिए भी काम नहीं करते। दूसरी बात, अपने कामों के लिए जो हमें खुद करने चाहिए, हम दूसरों पर बोझ बनाते और उनके ऊपर डालते हैं बआसानी। अब इसका मतलब काम हमें करने चाहिए, जो कामों की जिम्मेदारी हमारी है, हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। आप मुझे पानी पिला दो, प्यास आपको लगी है, जरूरत आपकी है, आपने खुद अपनी जरूरत को पूरा करना है। आपको अपनी जरूरत खुद पूरी करनी चाहिए काम करके। इसी तरह अब हम देखते हैं, हम इसको मजीद सीखने के लिए कि खुदावंद क्या चाहते हैं कि हम काम करें या ना करें, खुदावंद की क्या मर्जी है, खुदावंद ने ये दुनिया में हमें क्यों रखा है, ये दुनिया क्यों बनाई है, और हम इंसान जो हैं वो किस तरह से इस दुनिया से रुखसत हों, और किस वजह से खुदावंद जो है वो हमें हमारा अजर देंगे, उसके पीछे क्या बात है, वो हम देखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 27वीं आयत लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक़्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए।
यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इब्ने आदम आएगा, जब खुदा अदालत करेंगे, यीशु मसीह अदालत में बैठेंगे, अपने तख्त पर बैठेंगे, तो किन बातों का जिक्र किया जाएगा वो हम देखते हैं। लिखा है, हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। कामों का जिक्र वहां पर होगा। कितना काम किया था, काम नहीं किया था, क्या काम अच्छा किया था या काम बुरा किया था, इन बातों का जिक्र ऊपर किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कितनी देर सोफे पे बैठे थे, कितनी देर लेटे रहे थे, कितनी देर कुछ नहीं किया था। वहां पर ये जिक्र नहीं, बल्कि कामों का जिक्र होगा, आपके आराम का जिक्र नहीं होगा। और हमारे कामों के मुताबिक हमें बदला दिया जाएगा। काम करने के जितने काम हमने यहाँ पे किए, जिन जिन कामों को हमने किया है, उनके मुताबिक खुदावन बदला हमें देंगे। अब वो बदला अच्छा है और बुरा भी, अजर भी है और सजा भी, जिंदगी भी है और मौत भी। तो ये कामों के वसीला से खुदावन जो हैं अदालत के दिन हमारा फैसला करेंगे कि काम कौन सा था जिसकी वजह से खुदावन जी फैसला देंगे, हमारी जिंदगी के लिए फैसला होगा। अब हमें फिक्र होनी चाहिए, परेशानी होनी चाहिए, वाकई परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इसको परेशानी नहीं लेंगे हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं कामों की वजह से हमें बदला मिलने वाला है। अब काम जो है, पहले मैंने जिक्र किया कि काम ना करने की वजह से मुसीबत और तंगी, दुख और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, और काम करने के बायस हमें आराम और खुशी मिलेगी, इज्जत मिलेगी। अब हम इसको सीखने के लिए अब हम पहले ये वाला नुक्ता सीखते हैं कि काम करने की वजह से हमें इज्जत मिलेगी, आराम और खुशी मिलेगी। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें कलामे मुकद्दस में जो तालीम दी है, जो हुक्म दिए हैं, जो आपको कलामे मुकद्दस से हुक्म पता है, आप उन हुक्मों पर अमल करने की, काम करने की कोशिश करें। अपनी जात के लिए करें, उसको काम में लगाएं, अपनी रूह को काम में लगाएं, अपने बदन को काम में लगाएं। जहां आपका नहीं भी दिल करता, आप उसको अपने खुदा की तालीम के मुताबिक उनको काम में, अपने बदन को लगाएं, अपने रूह को लगाएं, अपने दिल को लगाएं, अपने दिमाग को लगाएं, अपनी एक एक चीज को खुदावंद के काम में लगा दें और काम करें। इससे जब हम खुदावंद यीशु मसीह, अब देखो छोटी सी एक बात से मैं आपको सिखाना चाहूंगी रूहुल कुद्स के वसीला से, कि जैसे माँ बाप हैं, वो आपको कोई हुक्म देते हैं कि बेटा उठ के ये काम कर दो, या वो आपको नहाने के लिए ही कह देते हैं, वो भी आपकी अपनी जात के लिए होता है। आप कहते हो अभी नहीं, इसका मतलब है कि आपने काम ना किया, क्योंकि आपने ताबेदारी नहीं की, आपने उस हुक्म की ताबेदारी नहीं की। आपको जो काम माँ बाप ने कहा आपने नहीं किया, तो इसका नुकसान क्या है? आपने अपने माँ बाप की नाफरमानी की। और उसके बाद हमारे पास बहुत से एक्सक्यूजेस हैं, अभी नहीं मामा, अभी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, अभी ठहर के नहाऊंगा या नहाऊंगी। तो हम इस तरह के आगे से जवाब बआसानी देते हैं, क्योंकि हम काम करना नहीं चाहते। काम ना करने की वजह से ये आयत जो है उसकी हुक्म अदूली होती है कि अपने माँ बाप का हुक्म मानो। ये तो इंसान के वसीला से हम खुदा के कलाम की नाफरमानी करते हैं, क्योंकि हम काम नहीं करते। इसी तरह हमें काम करने की आदत नहीं है, तो जो खुदा ने हमें हुक्म दिए हैं कि हम बाइबल मुकद्दस रोज़ाना बिला नागा पढ़ें, तो हम खुदा का ये काम नहीं करते कि हम रोज़ाना हाथ मुंह धोकर हम खुदा के कलाम को पकड़ें और उसको पढ़ें, क्योंकि ये भी एक काम है। क्योंकि काम करने की आदत नहीं, इसलिए हम ये नाफरमानी भी करते हैं। इस तरह से हम सारे हुक्म, सारी खुदा की तालीम ना काम करने की वजह से तोड़ते जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हमने क्या करना है कि हम जब हमें हुक्म मिले,
खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है, ये बाइबल मुकद्दस में ये आयत लिखी है और मैंने ये काम करना है, क्योंकि अगर मैं ये काम कर लूँगा तो मेरे अंदर ये फल आ जाएगा कि मैं अपने माँ बाप का ताबेदार हूँ। तो आपकी एक रासबाजी गिनी जाएगी, और जब अदालत के दिन आपके काम करने की वजह से आपके अंदर ये फल आ जाएगा और खुदा देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह देखेंगे कि इन्होंने मेरी तालीम पर अमल किया है, काम किया है, तो आपके इस काम की वजह से वहाँ से आपको रिहाई मिलेगी, आराम हमेशा का मिलेगा, हमेशा की खुशी मिलेगी और हमेशा के लिए आपको इज्जत दी जाएगी कि आपने मेहनत की और आप हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होगे। ये एक छोटी सी मिसाल थी। इसी तरह कलाम मुकद्दस में जितने भी हुक्म हैं, जितनी भी तालीम है, जहाँ कहीं उस तालीम को आप सुनो, उस आयत को सुनो, खुदा का कलाम सुनो, खुदा का कलाम आपको बताया जाए, हम इस तरह से अपने अंदर खुदा के कलाम के मुताबिक अपने कामों को ऐसा बना सकते हैं, कामों के वसीला से हम अपने अंदर खुदा की ताबेदारी, कलाम के फल डाल सकते हैं जो खुदावंद हमें कह रहे हैं, और इस तरह से हम अदालत से छूट सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम क्योंकि हमें काम करने की आदत नहीं है, तो जो काम भी हमें कहा जाएगा, माँ बाप कहते हैं तो भी हम नाफरमानी झटपट कर देते हैं, फौरन हम कहते हैं अभी हमारा दिल नहीं चाह रहा। बात आपके दिल की नहीं है, बात नाफरमानी की है, बात माँ बाप के हुक्म को तोड़ने की है। आप कहते हो नहीं अभी नहीं, ये आपका लाड नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये आप अपने अंदर एक बुरा फल लेके आ रहे हो और मजीद उसको मजबूत कर रहे हो, उस गुनाह की, नाफरमानी की जड़ें अपने अंदर और ज्यादा मजबूत कर रहे हो। खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है लालच ना करो। खुदावंद का कलाम सिखाता है एक दूसरे बेगाने माल का लालच ना करो। हम काम ना करने की वजह से दूसरों के पैसों पे नजर रखते हैं और इस तरह से हम ना काम करने की वजह से लालच का बुरा फल अपने अंदर रोजमर्रा डालते रहते हैं। इसकी वजह से हम चोरी भी कर सकते हैं, जो चीजें हमें चाहिए हम उसको पूरा नहीं कर सकते, जिन बातों की हमें ख्वाहिश है हम दूसरों की चीजें देखते हैं और फिर काम ना करने की वजह से हम चोरी भी कर सकते हैं। इस तरह के बहुत से काम ना करने की वजह से हम बहुत सी बदियां और खुदा के कलाम को तोड़ते रहते हैं, और फिर खुदावंद अदालत वाले दिन हमसे पूछेंगे कि क्या तूने ये काम किए थे, जो आयत मिली थी, जो कलाम मिला था, जो तालीम दी गई थी, जो कलाम तूने चर्च में सुना, जो कलाम तूने अपने चुपान से सुना, जो कलाम तूने यूट्यूब से सुना, जो कलाम तूने गीतों के वसीला से सुना, ज़बूर के वसीला से सुना, जो कलाम तूने कलाम मुकद्दस को खुद पढ़ के सुना देखा, क्या तूने उसके लिए मेहनत की? अब खुदावंद का कलाम है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हमें एक दूसरे के लिए फिक्र करने की बजाय करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमारे घर में कोई अजीज हमारा बीमार होता है, फर्ज करें हमारा बाप, हमारी माँ, हमारा बहन भाई, कोई भी बीमार होता है, हमें उसकी तीमारदारी करने के लिए, क्योंकि लिखा है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, हम उसको छोटी सी एक टैबलेट देने के लिए भी हम कहते हैं हम क्यों दें। हम उसको एक गिलास पानी नहीं देते, हम उस पर भी आर्ग्यू करते हैं। क्या हम उस वक्त ये खुदा का कलाम नहीं तोड़े कि खुदा हमें सिखा रहा है कि इससे मोहब्बत रख? हम अपने छोटे बहन भाइयों के साथ बुरा सलूक करते हैं और कहते हैं ये बहुत बदतमीज है, मैंने इसके लिए ये काम नहीं करना। भाई आप इसका फैसला नहीं कर सकते, आप अपनी ड्यूटी पूरी करो कि आपको खुदावंद ने कहा है कि आपने एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। वो जैसा भी है आप उसके साथ अच्छा रवैया रखो, जो उसे चाहिए उसे मुहैया करो, जो उसकी जरूरत है उसमें उसकी मदद करो, उसकी केयर करो। लेकिन हम लोग अपनी सोच से खुदा के कलाम को तोड़ मड़ोड़ के फैसले करके, बातचीत करके अपने आप को कुर्सी पे आराम में बिठा लेते हैं। क्या हम काम ना करने की वजह से
ऐसा नहीं करे। खुदावंद ने तो कहा है काम करो, मोहब्बत करो एक दूसरे को, उनके लिए जो आपको करना पड़ता है आप करो। अगर आपको कोई एक कोस के, आप उसके साथ 2 कोस बेकार में भी चले जाओ, ये खुदावंद का कलाम है। उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, हिलना पड़ेगा, किसी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन हमने ये देखा है कि हम तो अपनी जात को बचाने के लिए भी ऐसा नहीं करते, अपने जात को भी तड़पते हुए छोड़ देते हैं, तो दूसरे से क्या मोहब्बत करेंगे। तो हम अपनी जात से भी काम ना करने के फल की वजह से अपने आप को भी मोहब्बत नहीं करते, तो हम खुदा के इस कलाम पर भी अमल कैसे कर सकते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। इसी तरह बहुत से जो भी खुदा का कलाम आप पढ़ो, अगर आप उसके अंदर अमल नहीं करते, काम नहीं करते, तो आपको अदालत के दिन आपके काम ना करने की वजह से आपकी जिंदगी में यह फैसला हो जाएगा कि हमेशा की इसको मौत में डाल दो, अंधेरे में फेंक दो इसको, जहां पर रोना और दांत पीसना होगा। आप अपनी जात पर काम ना करने की वजह से, अपनी रूह पर काम ना करने की वजह से आप बाआसानी अपने आप को हमेशा की आग में झोंकने को भी तैयार हैं। इससे ज्यादा बड़ी नफरत अपने आप से कोई नहीं होगी। दूसरी बात, जब हमें मालूम है कि हमारा काम करना, हमारा मेहनत करना इतना ज्यादा जरूरी है कि वो हमें हमेशा के आराम, जिंदगी, इज्जत के साथ साथ हमें हमेशा की आग जिसमें दुख, तकलीफ, तड़पना है, उधर से रिहाई दे सकता है, तो क्या हमें अक्लमंदी करके बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहिए? किसकी तरह? खुदा बाप की तरह, जो यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है, और यीशु मसीह ने कहा मैं भी काम करता हूं। तो हमें अपने बाप, जो आसमानी बाप है, उसकी तरह, और हम हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरह हमें भी काम करना चाहिए, क्योंकि काम करना हमारी जरूरत है। हमें काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये जरूरत अपनी नहीं पूरी करेंगे तो अदालत वाले दिन, यहां पे तो हम वक्ती तड़पते हैं, तकलीफ में रहते हैं काम ना करने की वजह से, लेकिन काम ना करने की वजह से हम हमेशा के लिए तड़पेंगे और फिर हम उसमें से नहीं कभी निकल सकते। तो हमें आज ये फैसला करना पड़ेगा, अपनी रूह को झंझोड़ो, अपने अंदर एक फैसला करो, जोशीला फैसला, मैंने काम करना है। आसमान का खुदा जो हर चीज का, कायनात का एक एक जर्रे का मालिक है, वो काम करता है, मेहनत करता है, मैं भी काम करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह जो मेरा खुदा है, मेरा मालिक है, वो काम करता है, मैं भी काम करूंगा, क्योंकि काम करना मेरी बहुत बड़ी जरूरत है। मैं आखिर में ये ज़रूर बयान करना चाहूँगी कि हम काम कौन से करें। दुनियावी काम, गुनाह के काम तो हम लोग बहुत शौक से करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगाते हैं, और वो काम करते हुए ना तो हम थकते हैं, ना तो बेजार होते हैं, ना तो मुंह मड़ोड़ते हैं, ना मुंह बसारते हैं, और खुशी से करते हैं। और उस काम के लिए हमारे अंदर मेहनत भी आ जाती है, वक्त भी आ जाता है, लेकिन इन कामों का बदला आपको बुरा मिलेगा। हमने वो काम करने हैं जो रूहानी काम है, यानी जो काम आप खुदा के कलाम के लिए करते हो, खुदा कोई हुक्म देता है उसके लिए करते हो, जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है उस पर अमल करने के लिए आप काम करते हो, मेहनत करते हो, उसका आपको अजर मिलेगा। अब काम भी जो हैं वो 2 तरह के हैं, बदी के काम और खुदा के कलाम के खिलाफ काम करना। वो काम हम अपने रोकें, और जो काम खुदावंद हमसे चाहते हैं कि हम उस कामों में मेहनत करें ताकि खुदा हमें अजर दे सके, तो हमें उन कामों को करना है। काम को हमने पहचानना है कि कौन सा काम हमारे लिए ठीक है, कौन सा काम हमारे लिए गलत है, कौन सा काम बुरा है और कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए, कौन सा काम अच्छा है और हमें करना चाहिए। हमें इस चीज़ को देखकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सारा दिन वो काम करने चाहिए जिनसे खुदा खुश होते हैं, और जो कलाम में लिखा है उसके लिए आप काम करें, जो खुदा हुक्म देते हैं उसके लिए काम करें, जो कोई खुदा ने आपको खिदमत दी हुई है, कोई नबूवत की गई है आपके लिए, या आपको खुदावंद ने रोया में या ख्वाब में बताया है, उसके लिए आप मेहनत करें, उसके लिए उसका काम करें, और उस काम को करने के लिए आप सुस्ती काहली ना दिखाएं। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आमीन।